اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس کا نام ہے راب، میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا کہ ہم اللہ کو کیوں مانیں، تو پھر میں نے اس کو بتایا دیکھو زمین بنجر ہوتی ہے، اللہ وہاں اناج اگاتا ہے، ہر سال میں تم 3 بار بھی جو ہے کاشت پکا سکتے ہیں، ایک ہی زمین پر اناج پکا سکتے ہیں، یہ اللہ کا دینا ہے، جبکہ وہ بنجر ظاہر نہیں ہوتی۔ دوسری بات بادل ہے، بادل پانی نہیں ہوتا، جب وہ مل کے زمین پر برستے ہیں تو تم پانی کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بادل ہی آسمان پہ ہوتے ہیں۔ ہوا ہے، ہوا کو تم محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہوا کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے جو چیزیں تم کو نشانی کے طور پہ اللہ نے دی ہے، تم پہلے کچھ نہیں تھے، اس نے تم کو بنایا، وہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، پہلے تم نہیں تھے، میں بنایا تم کو، کیا تم کو میں دوبارہ نہیں بنا سکتا ہوں؟ اس نے اگری ہو گیا ہے بات پر۔ پھر اس کو میں نے بتائے پورے نشانیاں اللہ کے، کہ انسان مل کے نہیں رہتا، 3 مذہب ہیں ہمارے، ایک ہی گاڈ کہنے والے، جو اینڈ کرسچن اینڈ مسلمس، مگر اللہ ایکسپٹ اونلی اسلام اینڈ ہیومن نیور یونائٹڈ، یہاں تم کو پتہ چل سکتا ہے بات۔ اور پھر دوسری بات، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا، ان کے پاس باپ نہیں ہے، حوا علیہ السلام کے پاس ماں نہیں ہے، ان کو بنا ماں کے پیدا کیا حوا علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام ان کے پاس ماں باپ نہیں ہے، یہ 3 طریقے کے درجات کے حساب سے پیدائش الگ ہے، یہ میں نے بتایا۔ تو بہت خوش ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں ٹھیک ہے، میں ضرور اللہ سے عبادت کر کے پوچھوں گا کہ میرا خدا کون ہے، اور میں صحیح راستہ جانے کے لیے قرآن بھی چیک کریں گا انشاءاللہ۔ تو یہ میرے بھائی، یہ جو آسمان اور زمین جب بنایا اللہ تعالیٰ، آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے یہاں پر جنات تھے، اور شیطان کو اللہ نے کہا کہ آدم کو تم سجدہ کرو بنانے کے بعد۔ تو یہاں خود سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے شیطان ہے، اس سے پہلے جو ہے ابلیس کہلاتا ہے، اور وہ جنات ہے اور فرشتے ہیں، اور وہاں انسان کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کے پاس دوسری مخلوق موجود ہے اللہ کے پاس، اور یہ زمین پر بھی چل پھر رہی ہے۔ اب انسان کو سمجھنا ہے، آدم کو بھیجنے کے بعد سے 50,000 انسانوں نے مذہب بنائے، تو اللہ جب پوچھے گا حشر کے میدان میں، ضرور پوچھے گا کیا تم نے مجھے دیکھا تھا؟ نہیں، تو پھر پتھر کا رام کیوں بنایا؟ گنیش پتھر کا کیوں بنایا؟ مٹی کا کیوں بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا سمجھ کر جو ہے چرچ میں کیوں رکھا، پتھر کا یا مٹی کا؟ وہ پوچھے گا برابر، اور تم گھاٹے میں رہو گے، تم نقصان میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو بتا رہا ہے، دیکھو میں نشانی کے طور پر بتا رہا ہوں تم کو، یہاں انسان کی حقیقت نہیں ہے، میں 18,000 مخلوقات بنایا، اور انسان اپنی مذہب کے مرضی کے مذہب بن رہے ہیں ابھی بھی۔ یعنی حال ہی میں جو سردار جو مذہب بنا لیے، وہ 400 سال بھی ہوا، اب 100 سال پہلے قادیانی احمدی بنا لیے، وہ 100 سال ہی ہوا۔ تو اس طرح سے مذہب بن رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو الگ کہہ لے رہے ہیں، تو یہاں انسان کو کوئی آ کے ملائے گا بھی نہیں۔ اب انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ پوچھے گا تم کو میں نظر نہیں آیا تھا، تم نے پتھر کو کیوں عبادت کی، تم کو نظر نہیں آیا تھا میں؟ یہاں سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ اسی واسطے آپ حشر کا میدان ہوگا، ججمنٹ ہوگا، یہ دنیا کو توڑ پھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، آسمان اور زمین کی روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، تو اس وقت تک انسان کو سمجھ میں نہیں آنے والا جو ہے اس کا طریقہ، وہ چلتا رہے گا حسب معمول، کوئی سامنے نہیں آئے گا خدا کر کے، کوئی منادی نہیں کرے گا پوری دنیا پر۔ لیکن بدقسمتی انسان کی رہے گی جو نظر نہیں آنے والے کی عبادت کرنے کے بجائے پتھر رکھ کے عبادت کر رہے ہو، انسان کو خدا سمجھ رہے، انسان حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا پیر نہیں اٹھا سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام رات کو سوتے تھے، جبکہ انسان کو قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب تم موت کی سی نیند سوتے ہو جگہ تک کون ہے، اللہ پوچھ رہا ہے۔ اور انسان جب سوتا ہے، کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو سانپ کاٹ دیتے ہیں گاؤں کے اندر سوتے وقت بھی، انسان سوتے رہا، اور کوئی بھی جو ہے آ کے لاری سے ٹکر دے کے مار دے سکتا ہے سڑک کے پر۔ تو انسان کی حقیقت ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لی، انسان کی حقیقت ہی نہیں ہے کچھ، اور تم نے جو ہے سائی بابا کو خدا بنا لیا، جبکہ سائی بابا مسلمان ہیں، ہندو جانتے ہیں۔ سائی بابا مسجد میں چراغ رکھتے تھے، ہندو جانتے ہیں۔ سائی بابا داڑھی رکھا، سائی بابا ہمارے جیسے مسلمانوں جیسے جو ہے صوم و صلات کے کپڑے پہنے، اس کے باوجود بھی انسان کو تم خدا سمجھے، جبکہ وہ کچھ ہاتھ سے تم کو آ کے دے بھی نہیں سکتا دنیا میں۔ اور سائی بابا صرف جو عبادت ہوتی ہے
शिरडी वाले बाबा जो बोल के तुम बोलते हो वो सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक ही रह गए महदूद। तो इस तरह से बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है इंसान? क्योंकि खुदा नज़र नहीं आता। 50,000 ज़मीन पर ये मज़हब बने हैं। अब अल्लाह ताला पूछेगा इंसान से, जब मैं नज़र नहीं आता तो तुम गैब की इबादत करते? वो तुम्हारे शहरक के खरीबे कर रहा है, तुमको ये बात समझ में नहीं आई। और अल्लाह ताला ये भी बता दिया कुरान के अंदर, देखो मैंने इंसान को बाद में बनाया, पहले से इब्लिस मौजूद है, शैतान मौजूद है। और शैतान से बोल रहे हैं कि तू इस आदम का सजदा कर, वो कह रहा है मैं नहीं करता क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया, उसको पानी से बनाया। अब ईसा अलैहिस्सलाम की भी हकीकत को तुमको समझना है, उसको इनको बाप के बगैर पैदा किया, हवा अलैहिस्सलाम को माँ के बगैर पैदा किया। इनसे अब हवा अलैहिस्सलाम बोल सकते हैं मैं ईसा अलैहिस्सलाम से दर्जे में बुलंद हूँ क्योंकि मेरी माँ नहीं है, और आदम अलैहिस्सलाम कह सकते हैं मैं दर्जे में बुलंद क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है। अरे ऐसी पागल अक्ल की ईसाइयत, ऐसी पागल अक्ल की हिंदुइज़्म, अरे तौबा करो यार, तौबा करो इससे। अच्छा अब ये मैं हीरोज़ का दौर शुरू हो गया, सुपर हीरोज़ का। मैं इससे पहले भी 4-6 महीने पहले वीडियो में बताया था कि अब फिल्में चलेंगी तो फिर एक्शन हो, जैसे ब्रूस ली का वक्त था एक्शन का, या जेम्स बॉन्ड का, या फिर सुपरमैन स्पाइडरमैन का। तो इंडिया में अब वो चल रहा है, क्रिश हो या फिर जो है आपके किक तक भी ले लो। इस तरह से शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान कर रहे हैं। अरे ये मुसलमान ही है, इनकी ईद है ईद उल फितर, और इनके घर के पास गरीब आके ठहरे में, और खाली शाहरुख खान ऐसा हाथ बता के जा रहा, लानत भिजवा रहे हैं मुसलमान ये लोग। ये हामान, शद्दाद, नमरूद और ये फ़िरौन, ये क़ारून के जैसे हिरिस वाले इंसान हैं। इनको सिर्फ इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, इनको इसके बाद की आखिरत की ज़िंदगी नहीं चाहिए, तड़प के मरेंगे वहाँ। अल्लाह अगर से तुम जो है बुतों के जो है इबादत करने वालों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, तड़प के मरोगे। तुम जो है शद्दाद, हामान की तरह। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया अज़ाब हो रहा है दुनिया में। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खबर के पास ठहरे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए शद्दाद, ए नमरूद, ए हामान, देख तेरे को अज़ाब हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैलेंज। मैं इंसान के यकीन के लिए एक बात बताता हूँ। मेरे ससुरे, उनकी बेटी बड़ी, जब वो जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, हैदराबाद से वरंगल जा रहे थे, एक अल्लाह वाले वहाँ जिक्र कर रहे थे हैदराबाद में, वो अपनी जगह ठहर के करते थे चार मीनार के पास। उनका नहीं गए, जाके बोले बाबा मैं जा रहा हूँ मेरी बेटी को ले लेके। मेरी बेटी वहाँ पर उस जॉब का पोस्ट मिल जाना, पलट के भी नहीं देख के चले गए उनको यकीन था मेरे बाबा को, ससुरे को। वरंगल गए, मंडी बाज़ार में महबूबिया कॉलेज है, जो मेरे बाप अब्बा बानी थे उस स्कूल के, इस्लामिया के भी। खैर मेरे को पिछली दौर बात नहीं करना है, मगर मेरे ससुरे जब गए वहाँ पर स्कूल में, तो वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है इनकी बेटी का नाम के जॉब सेलेक्ट हो गए। अरे यकीन की बात है, अल्लाह के यकीन की बात है। मैं लाखों बता सकता हूँ, मगर मैं चल फिरता नहीं, और मेरे छोटे वीडियो रहते हैं, वरना जो है वो मेरे वीडियो निकाल देगा। ये मेरा रोना ये भी है कि मैं अगर से किसी को उंगली उठा के बताऊँ तो उन्हें बोलेगा ये मेरे वीडियो को इसके निकाल दो। अब मेरे को वो डर रहता है कि मेरे वीडियो ना निकले, इस वास्ते मैं हकीकत भी नहीं रख सकता हूँ, बहुत सारी बात हो गई। अरे मेरे मुसलमान, तुम ज़रा सोचो, ये शाहरुख खान, ये आमिर खान, ये सलमान खान, ये क्या करते हैं फिल्म में? क्या है? हाँ, फिल्म में ना तो ये स्टंट मैन वो साइकिल चला रहा किक में अंदर 19 साल का बच्चा, और सलमान खान को क्रेडिट मिल गया। वहाँ से जहाज़ के अंदर वो कूद के जो है बैग छीन ले रहा। टेक्नीशियंस हॉलीवुड के हैं या नहीं मालूम यूरोप के, उन लोगों का असल काम था, क्रेडिट सलमान को मिल गया। ट्रेन के सामने ट्रेन को रोक के जो है जा भी सकते हैं, बाद में ट्रेन चल सकती भी है, टेक्निक भी है, तो इस हिसाब से वो भी क्रेडिट सलमान साहब को मिल गया। गाने सलमान साहब को मिल गया, डायलॉग से सलमान साहब, जबकि रजत कपूर कुछ लिखा है। और कहानी हमारे तेलुगु की है, जबकि वहाँ की एक्टिंग अगर अभी तेजा की देखे तो सलमान खान बूढ़ा जो आदमी अब हो गया, उन्हें कुछ नहीं कर सका उसके सामने रवि तेजा। और वो जैकलीन को तो करना ही नहीं आया काम। वो अगर आप लोग देखना है तो तेलुगु की देखो, उसमें जो है वो लड़की इलियाना डिक्रूज क्या एक्टिंग करके दिखाई। उसमें कॉमेडी देखो ब्रह्मानंदम और अली की, और उसके गाने देखो, उसका जो है सिस्टम पिक्चराइज करने की मूवी देखो। ये तो खाली चुरबा बना के रख दिया साजिद नडियाड वाला, और क्रेडिट पूरा सलमान खान को चला गया। अब ये क्या मिसाल है बोले तो, घर तुम बना रहे, पैसा तुम खर्च कर रहे, और पैसा खर्च करके रजिस्टर भी तुम करा लिया, नाम भी तुम्हारा ही, मगर वहाँ जो किराए से रह रहा उसका नाम हो गया, यानी सलमान खान पूरा क्रेडिट लग गया। केक जो है खा लिया उन्हें,
सूटा आपको नीचे का कागज़ तो आपको दे दिया बोले, क्रेडिट पूरा खर सलमान को क्या। अरे बेवकूफ़ इंसानों, तुम लोग सोचो, एक ज़माने में 100 दिन हो गई तो फिल्म बड़ी तारीफ होती थी, बातें करते थे लोग, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। अब वो दौर चला गया। अब क्या है, खाली जो है फिल्म 100 करोड़ बनाई कि नहीं बनाई। अरे 100 करोड़ का दौर ख़त्म हो गया। 500 करोड़ तक भी फिल्में बनाई तो कुछ हकीकत नहीं रखेगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो देखेंगे वो सिर्फ इंडियन देखेंगे। ये लोग बोलेंगे कि वर्ल्ड वाइड हिट हुई, घंटा वो ना तो वहाँ कोई गोरा आके देखता ना तो काला आके देखता तुम्हारी फिल्म। हकीकत बता रहा हूँ पूरी दुनिया में, और सिर्फ इंडियन या बंगाली, पाकिस्तानी या फिर वो श्रीलंका के नेपाली देख लेना, पूरी दुनिया की चक्कर लो जाके थिएटर, ओ वर्ल्ड वाइड हिट हो गई। क्या क्या घंटा की हिट हुई। खाली इंडियन जो सड़ा वो गरीबों को देखना है तो वो शाहरुख खान के घर के पास और सलमान खान के पास सड़े सड़े चेहरे खड़े हुए रहते, देखो गरीबों के बेचारे बेचारे पूरा वक्त बर्बाद कर लेते उन लोगों के खाली एक झलक के वास्ते। अरे दीवाने कर ना तुमको वो खाना खिलाते ना तो तुमको जो ईद उल फितर की शीर खुरमा खिलाते। ऐसे गए गुजरों के पास घंटों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते, जबकि यहाँ फिल्में बनती हैं कोई नहीं देखता, यहाँ कुत्ता भी नहीं पूछता। यहाँ आके देखो टाइम स्क्वायर के एरिया में हज़ारों बोलती है हॉलीवुड की। मैं सच बता रहा हूँ, रोज़ की बात बता रहा हूँ मैं। हमारे इंसान वहाँ तरक्की नहीं कर रहे हैं इस वास्ते कि अनपढ़ है बेचारे। वो मामूली सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान कुछ करके दिखाता तो नहीं, मगर वो दीवानों के जैसा वक्त बर्बाद कर लेके खड़े हुए हैं। अरे एक मुसलमान अगर सही रहते तो जो है वाकई ईद के लिए दिन एक बड़ा मैदान है बॉम्बे में, वहाँ ले जाके जो है पूरे मुसलमान फिल्म इंडस्ट्री के या दूसरे भी मिल के जो है वहाँ खाना बनाते, ईद की खुशियाँ मनाते। वो नहीं है, खाली बराए नाम ईद है, फिल्म रिलीज़ होने की ईद का लफ्ज़ है। ईद का पावर असल जो है इंसानों को मिलाना है, गैरों को भी बुला के खिलाओ, खुशियों से उनके दिल सोचने लग जाएंगे कि वाकई सबका खुदा एक अल्लाह होगा बोल के। जैसे यहाँ अमेरिका में होता है, हर ऑफिसों में हर जगह पे कभी भी कुछ हो जाए, रिटायर्ड कोई हो जाए, कोई ट्रांसफ़र हो जाए या कोई अपॉइंटमेंट हो जाए या कोई जो है प्रमोशन हो जाए, सब मिल के जो है यहाँ गैदरिंग के कंट्रीब्यूट करके पैसा डाल, उस तरह डाल के कुछ बनाओ। अरे मुसलमान कै का मुसलमान रहे तू। अरे जो बात मैंने तुमको अभी इसमें बताई वीडियो में कि अल्लाह क़यामत तक नज़र नहीं आएगा और पूछेगा पूरी इंसानों से, मैं नज़र नहीं आया था, तू पत्थरों की क्यों पूजा करा। अल्लाह अकबर। उस वक्त खसारा तुम्हारा कोई नहीं बचा सका। मेरे जैसा जो दर्दमंद है और रोज़ फिर के किसी ना किसी को जहन्नुम से बचाने की दुआ कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरा वक्त लगा रहा हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी भूल के अल्लाह उनको बचा ले बोल के मैं रोज़ दुआ कर रहा हूँ। पूरी इंसानियत को दुआ भी कर रहा हूँ, पूरे इंसानों की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ अल्लाह से, पूरे इंसानों की तरफ से मैं शुक्र बजा ला रहा हूँ। अल्लाह तूने हमको ज़िंदगी दी, हम तुझे नहीं पहचान सके। इंसान क्यों नहीं पहचान सक रहा, यकीन क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि वो नज़र नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।